previous year. This video is brought to you by Competition Crusade, and my name is Somajit Goswami. Now, let us begin. Before watching this, do these to catalyze your learning process. Now, pretty self-explanatory. There are a few points that I want to discuss with you all before I start the video itself. So the very first point is that always sit with a notebook and a pencil or a pen, whichever, that will help you make notes, relevant notes. Now always make an error log of your own, okay? That will make sure that you will know which kind of sets you are able to solve and which are your plus points, which are your negative points, okay? These are very important. You should be, at this point of time at least, you should be very accurate with what are the level of questions that you are able to solve on your own. The next point is, watch the videos only after giving at least one shot at the set. Okay, pretty self-explanatory. Now, join the free Telegram group. Link is obviously in the description for doubts and discussion. Now, the Telegram group itself has 550 plus active members, and I am also active in the groups. We have questions and discussions over there all the time. So you can post your questions. It's a free group. You can post your questions, and you can be assured that it will be served. Now, the most important thing, for a little extra assistance, we have a paid batch for. So we are starting out a paid batch for the CAT 20 refresher course, where you will be given relevant material assignments, live webinar classes for the next 5 months till ZAT 21. Now the idea behind this is that I have received few months ago, I have received a huge number of requests to start live classes and all that. Now there's a reason why I could not start it. I have, some of you who know me from the Telegram group itself, you know me that the pandemic situation has literally crippled the entire system in which we run. So there were a lot of technical glitches at my end. Okay, the internet, Wi-Fi, and the studio. By God's grace, I have been able to set up my studio. But there are certain things which I couldn't do at that point of time, which I am not, will have any kind of problem this time. So yeah, that is it. About the fees is very low. It is 499 per month. Now this is very important. The course for the entire syllabus is not 499. It is on a monthly basis. So you will be paying 500 rupees on a monthly basis. Now why 499, 500? Why does why a structure like this? I would just like to talk about it. Then we will move to the video itself. The idea is you will be the master of your own judgment. So you can see if this course is not helping you, you can leave out at any moment. I have forgotten to write this thing over here that you will have a 15 days refund. We have a 15 days refund policy as well. In 15 days, if you are not happy with the process, we will refund your money. Okay. Regardless of saying, if you do not like the way how things will work, after a month or two you can also leave. Obviously you will be paying monthly, that is the reason. Okay, 499 is a very generous amount. It is there just to let the person, whoever is going to buy the course, understand that, or respect, if I may articulate myself that way, to respect the course. Okay, the content that I put out, respect it and respect the mentors. We have a few of mentors who are literally, some of them are IIM grads, some of them are doing their IIM turnover. So yeah, we have a lot of things which we will discuss with you once you enroll. What you need to do is you need to make the payment first, and then you have to send the screenshot in this handle, that is at Somajit61. It's a fairly simple process. Just make the payment and then you send the screenshot to this handle, and we will add you to the mailing list. Now the idea is, we are a little bit busy at this hour of time, so any personal communication will not happen. If you direct message me, it might just so happen that I may not be able to reply to it. Okay, only when you pay the
the paid batch fees, then we will have a one-to-one connection. There's a reason to it. If I don't do that, then it will be unfair, right? So yeah, I'll have to be fair with the paid student. So I don't think it's shady or anything like that. Okay. In the past few months, I have become a little, how do I put this? I've become a little protective is the word, if I can use. Anyways, happy learning. Let's dive into the set itself. Alright, so at this point in time, if you are first time looking at this set, just pause the video, read the questions, the sets, the entire dialogue that is given over here, and once you try it, only then, at least once, then you can begin to view this set. So I hope you have paused, you have read, and you have everything in your mind. Now let us go to the set itself by solving it. So, and one more thing, since I am going to be recording this impromptu, so I will talk in Hindi and English, okay? So that will make my life easy. Alright, so these are the points that are given. These are the two tables that were given, right? You remember this, the first table and the next table, right? So what I have done is, मैंने इसको यहाँ से कट करके इधर साइड पेस्ट कर दिया है, ठीक है? Why did I do it? Because you see, Amit, Babu, Chetan, Durga, Isha, all of them, the numbers are given over here, ठीक है? तो हम लोग एक टेबल खुद का बनाएंगे, हम लोग कुछ इसी तरह का डिजाइन फॉलो करेंगे, एक टेबल खुद का बनाएंगे और डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे कि हर एक पॉइंट में क्या दिया हुआ है, ठीक है? तो लेट्स मेक आवर ओन टेबल. So this is what my table looks like. Now let us just jump into the questions itself. चलिए. The very first thing is, if you are seeing this question in a mock test, in a section test, the very first thing that you need to understand, जब भी इस तरह के ये सुडोकू जैसा पजल है एक तरह का, तो I am very much fond of these kind of puzzles, okay? इसलिए because ये बहुत ज़्यादा difficult नहीं होते. दूसरी बात ये है कि अगर आप थोड़ा टाइम इन्हें देते हो तो ये पूरी की पूरी सॉल्व हो जाती है, ठीक है? Dependent upon the questions also. Now that is the reason why I have shown you the questions in the first slide itself. I hope you have seen the questions. I'm not going to go to the questions right now because anyways I'm going to solve this set. So there's no point that I read the questions. So let me solve it. मेरा तरीका ये है कि सबसे छोटा जो मुझे स्टेटमेंट दिखता है मैं सबसे पहले उन्हें पढ़ता हूँ, बिकॉज द क्वेश्चन सेटर इज नॉट गिविंग यू क्रोनोलॉजिकली एक डेटा वो ऐसे नहीं सेट कर रहा होगा कि आप उसको एक एक करके पढ़ोगे और उसको एक एक करके डिसाइफर करते जाओगे और वो आपका पूरा डेटा बन जाएगा, वैसा तो नहीं होगा, ठीक है? तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको उठाता हूँ. तो मुझे ये लास्ट के दो वाले अच्छे लग रहे हैं, मैं इन दोनों में से कोई एक उठाता हूँ. बाबू स्कोर्ड इक्वल मार्क्स इन हिंदी एंड हिस्ट्री, ओके? सो व्हाट आई कैन सी इज बाबू हिंदी एंड हिस्ट्री इक्वल मार्क्स उसने करे हैं, चलो ठीक है. ऐशा स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन ज्योग्राफी एंड हिंदी, ओके? 10 marks more in geography than in Hindi. So if this is plus 10, or rather let me just do it like this. Let me use the so Aisha has scored, let's say, in Hindi, if I can say, okay, X. So this will be X plus 10. I hope this makes sense. Correct? अभी आप एक चीज ध्यान से नोटिस करो कि क्या X का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिसाइसली इस कंडीशन में? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इस रो को ऐड कर दें, इतने को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, और उस इक्वेशन को जब रादर इक्वेशन बोल रहा हूँ, हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, एक्सप्रेशन जो भी आप चाहो बोल सकते हो, एक लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगा x में, जिसको कि जब आप सॉल्व करोगे, इक्वेट करोगे 300 से, तब आपको आपका x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसको दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं. 75 दैट इज 150, 50, 200, 200, 200, 200, 210, 210, 300 minus 200 is 100, 100 minus 10 is 90, correct?
यानी कि x का वैल्यू जो है वो 90 नहीं है, 2x का वैल्यू 90 है। प्लीज रिमेंबर कि x प्लस x था ना, तो 2x का वैल्यू 90 है। तो अगर 2x का वैल्यू 90 है तो x का वैल्यू कितना होगा? आई होप सोच लिया होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी सोचना, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ओके जस्ट अ सेकंड। तो x का वैल्यू कितना होगा? लेट मी राइट दैट 45, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आई होप दिख रहा होगा। एंड दिस वन इज 55, दिस वन इज 55, ठीक है। अब मैं नाउ द हार्डेस्ट पार्ट इज टू डिलीट जस्ट, या आई होप दिख रहा होगा 45 55, ठीक है। चलिए और सॉल्व करते हैं इसको। And it is a good idea to remove the data that you have used. बाबू वाला भी हमने यूज किया बट उसे रिमूव नहीं करेंगे। एक्सेप्ट मैथमेटिक्स चेतन, ऑल स्कोर्स ऑफ चेतन वर, ओके ये मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे चेतन के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है एज ऑफ नाउ। बाबू's highest score was 96 in geography. चेतन got more marks in, अच्छा एक चीज ये भी है कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ, मैं ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता हूँ। There's a reason to it, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे वाले इन्फॉर्मेशन लास्ट में ही देते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ, बाबू's highest score was 96 in geography, 96 okay, 96 given. Chetan got more marks in geography than any other student, which was a prime number, okay. Chetan has got more marks than any other student and it is a prime number. Now there's a reason I have said कि आप लोग इसको रीड कर लो, क्योंकि obviously मैंने सेट बनाया है तो मैंने तो रीड किया ही हुआ है। Maximum marks per subject was 100 and passing marks was 40. Each student passed in all subjects and scored marks only in integer values, यानी कि डेसिमल वेसिमल नहीं है, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज में ही है। इन दोनों स्टेटमेंट से आपको कुछ समझ में आना चाहिए और ये बाबू वाला स्टेटमेंट से आपको कुछ समझ में आना चाहिए। तो अगर चेतन ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है ज्योग्राफी में, which is a prime number more than Babu already has scored 96, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचता है प्राइम नंबर का, which is 97. Are you with me so far? I hope this makes sense. तो काफी हद तक डिसाइफर करा है, चलो आगे करते हैं, मिटा देते हैं जो भी नहीं हमने यूज करा है उसको। ये सब ठीक है। तो ये हम लोगों ने यूज कर लिया, ये हम लोगों ने यूज कर लिया, ओके। चेतन गॉट मोर मार्क्स इन दिस वाज अ प्राइम नंबर, तो ये भी हम लोगों ने यूज कर लिया। अमित हाईएस्ट स्कोर वाज इन मैथमेटिक्स, अच्छा अमित के बारे में कुछ नहीं पता है, अभी यूज नहीं कर सकते। चेतन गॉट 4 मार्क्स मोर इन ज्योग्राफी देन इन मैथमेटिक्स, अच्छा 4 मार्क्स मोर इन ज्योग्राफी देन मैथमेटिक्स, तो क्या होगा सोचना पड़ेगा क्या, लिख देता हूँ 93, यस, क्योंकि 4 मार्क्स ज्यादा ज्योग्राफी में किया है, ऑब्वियस है ना, 93 प्लस 4 इज 97, ठीक है। तो इसको भी कर देते हैं, 4 मार्क्स है मैथमेटिक्स, 6 4 मार्क्स है हिंदी एंड इंग्लिश, ओके 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 ओके, एंड 6 मोर मार्क्स इन हिंदी देन इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश वाले को मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, तो ये a प्लस 6 होगा, a प्लस 6, ठीक है। आई होप यू गाइस आर विथ मी सो फार। तो इसका भी हमने यूज कर लिया है। ओह गॉड, ये चीज मुझे सीखना पड़ेगा, इसको कैसे मैनिपुलेट करता है। चेतन 4 मार्क्स मोर इन ज्योग्राफी, ये खत्म कर दिया हम लोगों ने। 6 मोर मार्क्स इन हिंदी देन इंग्लिश, ओके, ये भी हम लोगों ने यूज कर लिया है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और ये पहले दो वाले, ये पहले के 2 स्टेटमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया था। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। In 3 subjects, Amit had 3 different scores that were squares of integers.
In geography and history, he had equal marks, and these were not squares of integer. ये कहना क्या चाह रहा है? देखो, ये कहना ये चाह रहा है कि ये दोनों भी इक्वल हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये तीनों यहाँ पे जो ये तीनों भाई साहब वो का नंबर आएगा, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अभी ध्यान से सोच के बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे, 125 ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं ना, 1000 ले लेते हैं या 1221 ले लेते हैं। नहीं, आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 है और पासिंग मार्क्स 40 है, और हर बच्चे का या हर स्टूडेंट का 40 मार्क्स से तो ज्यादा ही आया होगा। यानी कि इफ आई हैव टू आर्टिकुलेट दिस थिंग, मैं एक चीज कह सकता हूँ यहाँ पे कि आइदर, या रादर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो 100 पॉसिबिलिटी है, या फिर 81 पॉसिबिलिटी है, या फिर 64 पॉसिबिलिटी है, या फिर 49 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा सुसाइड कर देता हूँ। ठीक, तो आप देख सकते हो 10 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। सिमिलरली अगर आपको और आगे जाना है तो आप ये भी कर सकते हो, 36 लिख सकते हो। लेकिन एक मजे की बात, 36 आप किसी को भी अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि 36 नंबर इज नॉट अलाउड। इसका मतलब वो फेल हो जाएगा, और हर बच्चा पास किया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक चीज है, साइड में हम लोग इसको रखते हैं, इसको हम लोग यूज करते रहेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग कि हम लोग अमित को इंग्लिश में, मैथ्स में, हिंदी में नंबर कितने थे, ठीक है, क्योंकि खत्म हो चुके सारे डेटा। तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू माय माइंड इज कि मुझे ये ए जो है, ये ए खटक रहा है, क्योंकि मुझे ए दिख रहा है। आई डोंट लाइक टू सी दिस ए। तो मुझे इस ए को हटाना है, मुझे यहाँ पे कोई तो नंबर चाहिए। और जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा इसको प्रॉपर कर देता हूँ। 93, ओके। और कैसे करेंगे? देखिए, if I see along the row, मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक मिसिंग डेटा, एक मिसिंग कॉल ये भी है, बॉक्स भी है। इस मिसिंग बॉक्स के वजह से मैं रो वाइज टोटल नहीं कर सकता। तो क्या मैं कॉलम वाइज टोटल करके देख सकता हूँ? ऑब्वियसली मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो 50 plus 50 is 100 plus 182, that is plus 82 rather is 182. 182 subtracted from 272. If I have to write this, 272 minus 182, आपको दिमाग में आ चुका होगा कि the value is 90. आप ध्यान से देखो, इस वैल्यू को अगर मैं b बोल दूं, तो a plus b is equal to 90, ओके। और अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स के टर्म में लिखना चाहते हो तो 90 माइनस ए आप लिख सकते हो, 90 माइनस ए। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जो स्क्वायर का फंडा है, वो स्क्वायर का फंडा क्लियर करने के लिए। अभी ध्यान से देखो, अगर इंग्लिश 90 माइनस ए है तो बट ऑब्वियस है कि 100 तो आप दे नहीं सकते अमित को इंग्लिश में। देयर इज अ रीजन टू इट, लेट मी टॉक अबाउट दैट रीजन। अमित को इंग्लिश में आप 100 नहीं दे सकते। व्हाई? ऑब्वियसली क्योंकि 90 माइनस 100 तो नेगेटिव में हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। तो क्या 81 दे सकते हैं? 81 दे सकते हैं क्या? गलती मैंने काट दिया, मैंने पहले बताया इम्प्रॉम्प्टू बना रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। क्या 81 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप देख लो, अगर आप यहाँ पे 81 देते हो, 90 माइनस 80 is 10 minus 1 is 9। अगर आप यहाँ पे अगर आप 90 माइनस ए का वैल्यू 81 देते हो तो दूसरा वैल्यू 9 बन जाएगा। इज 9 एक्सेप्टेबल? तब तो फेल हो जाएगा चेतन इंग्लिश में, इम्पॉसिबल, ठीक है, वो तो कंडीशन चलेगा नहीं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं उसको 64 दे करके देखने की कोशिश करूंगा। 90 माइनस 30 is 60 माइनस 4 is 54, करेक्ट है? 90 माइनस 60 is 30 माइनस 4 is 26। मैंने 54 बोल दिया, सॉरी, 26, ओके। 26 होगा अगर मैं इसको इस बॉक्स को मैं 64 देता हूँ तो
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 90 माइनस ए को हम लोग 64 पुट कर देंगे तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर यहाँ पे मुझको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। 26 मिलेगा। 26 पॉसिबिलिटी है। देखो मैं चुप इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं चुप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई एम गिविंग यू सम टाइम टू थिंक अपॉन इट। मैंने ऑलमोस्ट इसको सॉल्व किया है, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व नहीं किया, कल बैठा था लेकिन पूरा नहीं किया था, अभी कर रहा हूँ, चलो कोई इशू नहीं है। 26 नहीं चलेगा, ठीक है, यानी कि 64 भी रूल आउट हो गया। तो अब मेरे पास सिर्फ दो नंबर बचे हैं, 36 और 49। 36 तो पहले ही रूल आउट हो गया क्योंकि 36 आप दे नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने 90 माइनस ए की जगह पे 36 पुट कर दिया तो वो ऑलरेडी अमित फेल हो जाएगा, यानी इनवैरिएबली इस नंबर को आपको 49 देना ही पड़ेगा। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा था, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 90 माइनस ए को आपने 49 देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 90 माइनस ए को हम लोग 49 दे देते हैं, और अगर 90 माइनस ए 49 है, अगर 90 माइनस ए 49 है तो ये 41 हो जाएगा। ये 41 कैसे होगा, आप सोचो 41 कैसे होगा। ऑब्वियसली दोनों का सम 90 के इक्वल होगा, और फिर इसको भी हम लोग डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करके यहाँ पे भी कुछ लिखेंगे। 41 प्लस 6 कितना होगा, मुझे नहीं आता है सर, आप ही बताओ कितना होगा। 47 हो जाएगा, 47। अब देखो ये नंबर मेरे लिए कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, चेतन का मैंने पूरा रो कैलकुलेट कर लिया है। सो 351 से जब आप इन सारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, which is 93 plus 41 plus 41 plus 97, तो फिर आपको ये नंबर मिल जाएगा। प्रिसाइसली अगर मुझे बताना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं 90 plus 9 मैं कैसे करता हूँ, मैं यूनिट मैं 100 डिजिट्स को पहले ऐड कर लूँगा, फिर यूनिट डिजिट्स को कर लूँगा। ये मुझ ज़बानी कर सकते हो, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो 90, 90, 180, 187, 190, 190 plus 41, 190 plus 190 plus 10 is 231, 231 plus 47, 231 plus 47, 278. If I subtract this from 351, कितना होगा, 73, ओके। तो मैं यहाँ पे 73 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं 73 इसलिए पुट कर पा रहा हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 351 से जब मैंने 278 को माइनस किया, ठीक है, 278 को माइनस किया तब मुझको वो दिखता है। Let me do it again, just so as to be I'm not going astray anywhere. 93 plus 41 plus 47 plus 97, which is 270. Yeah, correct. Normally मुझसे इन सब चीज़ों में गलतियाँ नहीं होती है, but since I am explaining it in the form of a video, तो मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। काफ़ी सारे हमने फिल कर लिए हैं, देखते हैं और क्या क्या फिल कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक मज़ेदार चीज़ होगी, अगर मैंने इंग्लिश को फिल कर लिया है 49, तो मेरे पास मैथ्स और हिंदी में भी परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए डेटा थोड़ा थोड़ा कम होता चलेगा। चलो, ये कहा गया था यहाँ पे, इस पॉइंट को देखो कि अमित हाईएस्ट स्कोर वाज इन मैथमेटिक्स, तो मैं मान लेता हूँ कि उसको 100 आया है, ठीक है। और मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम स्कोर देना है अमित को, तो मैं 100 मानता हूँ। तो अगर मैं 100 मानता हूँ, आप ध्यान से देखो 49 है, और इसको आप क्या दे सकते हो, फिर आप कुछ भी दे सकते हो, आप 81 दे सकते हो, 64 दे सकते हो, 49 दे सकते हो। मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं इसको 81 दे रहा हूँ, और मैं 81 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों पोजीशंस पे मुझे डेसिमल नहीं चाहिए। अभी वो समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो अगर मैंने 320 में से, अगर मैं इसको
कुछ भी मान सकता हूँ, x मान सकता हूँ, 2x बोल सकता हूँ। तो 149 और अदर 150 प्लस 80, 150 प्लस 80, 50 plus 80 is 230, 300 minus 200 is 100, 20, यही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता। 320 minus this is, okay, so the value comes out to be 45. ये दोनों वैल्यू 45 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 हो सकता है, ठीक है, 45 हो सकता है। अभी एक काम करते हैं, आप देखो इसको टोटल करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास 402 है, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए कि ये वैल्यू कितना निकल के आता है। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी तो चेक करके पता होना चाहिए ना कि ये वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, तभी तो दुर्गा का वैल्यू कितना आ रहा है ज्योग्राफी में, तभी मैं असर्टन कर सकूंगा कि मेरा 100 जो अजम्पशन था वो करेक्ट है। अगर 100 से कम है, 40 से ज़्यादा है, एक नंबर आता है, तो मुझे ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ऑब्वियसली वो होगा नहीं, ठीक है, जो क्वेश्चन सेटर होता है वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि वो आपको मतलब, या रादर आपकी लाइफ उतना हेल्प नहीं करेंगे, तो वो आपको ऐसा नंबर नहीं देंगे। तो लेट्स add them 402 minus 90, you can use calculator, मैं पहले बोलना भूल गया था, you can use your calculator, but बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएगा, इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। तो जब आप 402 में से 45, 96, 97 एंड 55 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो आपको इस बॉक्स का जो वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू आपको मिलेगा 109। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। 100 से ज़्यादा दुर्गा अगर बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी है, अगर बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी है, तो भी 100 से ज़्यादा तो स्कोर नहीं ला सकती। तो ये जो एजम्पशन था हमारा कि हमने 100 अमित को दिया था मैथमेटिक्स में, वो फ्लॉट हो गया। 49 हम दे नहीं सकते, तो नेक्स्ट बेस्ट हाईएस्ट जो है वो 81 दे के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिटाना शुरू करते हैं, ये वैल्यूज को भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 81, और फिर देखते हैं कि क्या 81 से हमारा केस बना। अगर 81 एंड 49 यूज किया है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, सोच के बताओ जल्दी, तब तक मैं लिख लेता हूँ। 64 ही यूज करूंगा ना, 49 तो यूज हो चुका, 36 यूज नहीं कर सकता क्योंकि 40 से नीचे तो किसी का स्कोर आया नहीं है, तो 64 यूज कर दूंगा। अब इन दोनों का स्कोर कितना होगा? ऑब्वियसली दोनों इक्वल है, 320 में से इन तीनों का सम को माइनस कर दोगे, जब माइनस करोगे तो तुम्हें वैल्यू मिलेंगे 63 एंड 63, ठीक है। डज दिस मेक सेंस? यस और नो? आई होप द आंसर इज यस। 63, 63 और सोचते हैं कि और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको भी हम फिल कर सकते हैं, इस वाले को 63, 96, 97, 55, तो ये वाला भी फिल हो जाएगा। 402 में से जब हम लोग उसको पूरे वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हमारा ये वैल्यू निकल करके आएगा 91, ओके। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 91। और सिमिलरली अगर आप देखो तो 82 प्लस 94 प्लस 91 प्लस 88, जब इसको ऐड करके 440 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब आपको दुर्गा का मार्क्स पता चल जाएगा मैथमेटिक्स का, और दुर्गा का मार्क्स मैथमेटिक्स में है 85, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी करने लगा हूँ क्योंकि आइडिया मैं क्लियर कराना चाहता था, सॉल्व तो तुम कर ही लोगे, मुझे तो बस आइडिया क्लियर कराना था, ठीक है। सिमिलरली अभी क्या करोगे, अभी आपको देखो अब कितना आसान हो गया। अब मैं कॉलम्स को जोड़ करके सीधा निकाल रहा हूँ, इसको जोड़ करके आसानी से निकाल रहा हूँ, रोज को जोड़ के आसानी से निकाल रहा हूँ। सो 81, 93, 85, 75 को ऐड करके 400 में से माइनस कर दोगे, तो आपको बाबू का मैथमेटिक्स वाला स्कोर पता चल जाएगा, एंड ही हैज स्कोर्ड 66। मतलब अब तो मक्खन के जैसा सॉल्व हो गया ना, ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल है, तो एक को x मान लो, दूसरा भी x ही होगा, तो 2x। फिर हम लोग 66, 50, 96 को ऐड करके 320 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। Precisely the values are going to be 54 and 54, okay।
54 एंड 54। तो हमने टेबल जो है वो कंप्लीटली फिल कर लिया है। अब आपको ये जो टोटल्स हैं ये सब फिल करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन देख करके हमें टेबल फिल करना था, हमने टेबल फिल कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। अगर क्वेश्चन हमसे कुछ भी फिल कराने के लिए कहेगा तो हम उसे फिल करेंगे, अदरवाइज हम लोग सीधा आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द, और आधा मैं ऐसे कर देता हूँ, व्हाट इज द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ all the 5 students? What is the sum of the marks scored by all the 5 students in Hindi? चलिए पीछे चलते हैं, हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना है। Can we add them? फिर से सोचो, can we add them? Yes, of course we can add them. 64 plus 54 plus 47 plus 94 plus 45 gives you what? Gives you what? Gives you 304. ठीक है, चलिए तो फिर पहला जो आपका आंसर आएगा वो 304 होगा। Among all the students who scored the maximum marks in mathematics, I hope दिख रहा है आपको mathematics. Among all the students who scored the maximum marks in mathematics, मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स किसने स्कोर किया है? तो मैथमेटिक्स कॉलम में चलेंगे, जिसका मैक्सिमम होगा उसी का होगा। ठीक है, आप देख लो, मैक्सिमम इज चेतन, मैथमेटिक्स वाला मैक्सिमम तो चेतन है 93। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग चेतन को कर देंगे। एक सीवीडी में डाला था वहाँ पर, तो मैं इसको देख करके जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मैंने सीवीडी देखा, मैंने सोचा डिफिकल्ट सेट बनेगा, बट इजी सेट निकल गया। द डिफरेंस बिटवीन बाबू एंड चेतन स्कोर इन हिस्ट्री। ओके, बाबू और चेतन का हिस्ट्री में डिफरेंस बताना है, बाबू और चेतन का हिस्ट्री में डिफरेंस बताना है। तो 73 माइनस 54, 70 माइनस 73 माइनस 54 is 20 माइनस 1 is 19, करेक्ट? क्या मैं 19 यहाँ पे, हाँ 19 है, आप 19 को टिक करो, आगे निकल जाओ। व्हाट इज चेतन स्कोर इन इंग्लिश? ओके, चेतन का इंग्लिश में क्या स्कोर आया है? 41। सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड इट, आराम से किया है, सॉल्व किया है, ठीक है। मुझे ज़्यादा इसमें कुछ आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी फेयरली मॉडरेट कह सकता हूँ मैं। इजी तो बिल्कुल नहीं था, इजी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट डाला था, वो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इरिटेटिंग था। अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।